હેલો બાળકો, કેમ છો? મજામાં ને? આજે આપણે સ્વર શીખીશું. શું શીખીશું? સ્વર. સ્વર ખબર છે ને? અ થી રૂ સુધી. અ થી રૂ સુધી જે વ્યંજનમાં આપણે લગાડીએ છીએ માત્રા, એને આપણે સ્વર કહીએ છીએ. તે સ્વર આજે આપણે શીખીશું. શીખવું છે ને? શીખવું છે ને? તો આજે આપણે સ્વર શીખીએ. ચાલો તો શીખવાની શરૂઆત કરીએ. આ વિડીયોમાં એક એક સ્વર શીખીશું ચિત્ર સાથે. ઓકે? અ થી રૂ સુધી શીખવું છે ને? તો આપણે હમણાં સામાન્ય માહિતી મેળવીએ कि गुजराती और हिंदी में केवी रीतना लखाय. देखिए, आप दिख रहा है ना स्क्रीन पे कि गुजराती में इस तरह लिखा जाता है और हिंदी में इस तरह. तो पहले आप ये देख लीजिए, फिर हम एक एक वर्ण पढ़ेंगे. ऊपर तमे हेडिंग वाँचो. एक साइड गुजराती लखेलू छे અને એક સાઈડ હિન્દી. તો આ ગુજરાતીના સ્વર છે. ગુજરાતીમાં અ આવી રીતના લખાય અને એની સામે જે હિન્દીમાં અ છે એ આવી રીતના લખાય. એવી રીતના આ છે ને એની સામે હિન્દીમાં આ. ઈ હિન્દીમાં ઈ, ગુજરાતીમાં ઈ અને હિન્દીમાં ઈ. આ પ્રમાણે અહીં ઘરે હિન્દી અને ગુજરાતી બેમાં તમને સ્વર આપેલા છે. આપેલા છે ને? એ તમે જુઓ. ઓકે? હવે આપણે ઉ શીખીશું. તો જો ગુજરાતીમાં ઉ, હિન્દીમાં ઉ. ઉ એ ઐ છે ને સામે સામે. આ સાઈડ ગુજરાતીમાં અને આ સાઈડ હિન્દીમાં. ઉ પછી હિન્દીમાં મોટી ઉ, પછી हिंदी बड़ी उ. ओके? गुजराती में ए, हिंदी में ए. गुजराती में ऐ અને હિન્દીમાં ऐ. આ પ્રમાણે છે હિન્દી અને ગુજરાતીમાં. સમજ પડી ને? હવે આપણે આગળ શીખીશું. આવી રીતના તમે જુઓ અને સમજો હિન્દી અને ગુજરાતીમાં. હવે જો ઓ ઓ, ઔ ઔ, અમ અહ અહ, રૂ રૂ. ઓકે? ગુજરાતીમાં રૂ કહેવાય ને હિન્દીમાં રી. ઓકે? સમજ પડી ને? આવી રીતના ગુજરાતીમાં છે અને આ સાઈડ હિન્દીમાં. સમજ પડી ને? વેરી ગુડ. હવે આપણે આને કેવી રીતના લખાય અને એમના શબ્દ શું થાય તે આપણે જોઈશું. તો ચાલો આપણે જોઈએ. ગુજરાતીમાં અ આવી રીતના લખાય. આને શું કહેવાય? અ. અ અજગરનો અ. અ અનાનસનો અ. ઓકે? પડીને સમજ? તો બોલો મારી જોડે. અ અજગરનો અ. अनानसनो अ. अब बताइए ये क्या है? आ. आ. ओके? गुजराती में ये क्या है? आ. गुजराती में आ हम इस तरह लिखते हैं. पता चला ना कि हम गुजराती में आ कैसे लिखते हैं. तो चलिए अब हम देखते हैं आ से क्या होता है. तो आ આગનો આ. आ आकाशनो आ. दिख रहा है स्क्रीन पे? ये आ है. ये आ आग का आ है और आ आकाश का आ है. बोलिए मेरे साथ. आ આગનો આ આકાશનો આ. ચાલો હવે કહો આને શું કહેવાય? બોલો. हस्व ई. શું કહેવાય? हस्व ई. हस्व ई मतलब छोटी ई. क्या कहते हैं हम इसे? हिंदी में छोटी की मात्रा और गुजराती में हस्व ई. चलिए अब हम इसे चित्र के साथ देखते हैं. चलिए बोलिएगा मेरे साथ.
સ્ત્રીનો ઇમારતનો બોલીએ સ્ત્રીનો ઇમારતનો હવે જણાવો આ શું છે? ચાલો કહો, શું કહેવાય આને? दीर्घ ई। શું કહેવાય? दीर्घ ई मतलब बड़ी की मात्रा। गुजराती में इसे दीर्घ ई कहते और हिंदी में बड़ी की मात्रा। आया ना समझ में? चलिए अब हम उसके चित्र के साथ समझते हैं। तो देखिए, बोलिएगा मेरे साथ। ईद नो ईशु नो ई। बोलिए मेरे साथ। ईद नो ईशु नो ई। ओके, इस तरह आप बोलिएगा। ચાલો હવે કહો, આને શું કહેવાય? ऊ। શું કહેવાય? હસ્વ ऊ मतलब छोटी ऊ। ओके, क्या कहते इसे? छोटी ऊ। छोटी ऊ गुजराती में इस तरह लिखते हैं। आया समझ में? શું કહેવાય આને? हस्व ऊ। चलिए अब हम चित्र के साथ देखते हैं। बोलिए मेरे साथ। ऊ उपवनो ऊ उपवनो ऊ उंदरनो ऊ उंदरनो ऊ। बोलिए, उसे क्या होगा? उपवन और उसे उंदर। वेरी गुड। आने શું કહેવાય? ऊ। કયો ऊ છે આ? दीर्घ ऊ मतलब हिंदी में इसे हम बड़ी ऊ की मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ी ऊ की मात्रा। आया समझ में? चलिए अब हम इसे चित्र के साथ देखते हैं। बोलिएगा मेरे साथ। ऊ नो ऊ नो ऊट नो ऊट नो ऊ। बोलिए मेरे साथ। नो ऊट नो ऊ। ચાલો હવે કહો, આને શું કહેવાય? એ। શું કહેવાય? એ। ચાલો હવે આને આપણે ચિત્ર દ્વારા શીખીએ। ચાલો મારી સાથે બોલજો। એક નો એક નો રણ નો રણ નો ચાલો બોલો। એક નો રણ નો ચાલો હવે કહો, આને શું કહેવાય? ऐ। શું કહેવાય? ऐ। બોલો, શું કહેવાય? ऐ ऐ। હવે આને આપણે ચિત્ર દ્વારા શીખીએ। ચાલો બોલો મારી જોડે। ऐरावतनो ऐरावतनो ऐश्वर्यनो ऐश्वर्यनो बोलो चालो। ऐरावतनो ऐरावतनो ऐश्वर्यनो ऐश्वर्यनो ચાલો હવે કહો, આને શું કહેવાય? ओ। क्या बोलते इसे हिंदी में? ओ। बोलो, શું કહેવાય? ओ। શું કહેવાય? ओ। ચાલો હવે આને ચિત્ર દ્વારા આપણે સમજીએ। બોલો। ઓસીકુનો ઓસીકુનો ઓજારનો ઓજારનો बोलिए मेरे साथ। ओसीकूनो ओसीकूनो ओजारनो ओजारनो आने શું કહેવાય બાળકો?
औ। શું કહેવાય? औ। इसे हिंदी में भी औ कहते हैं। क्या कहते हैं? औ। बोलिए औ। चलिए अब हम इसे चित्र के द्वारा सीखते हैं। औ औषधनो औ। बोलिए मेरे साथ औ औषधनो औ। क्या है ये? औ। औ ઔષધનો ઔ। હવે કહો આને શું કહેવાય? અન્ન. શું કહેવાય? અન્ન. આ જે બિંદુ છે એને अनुस्वार કહેવાય। શું કહેવાય? अनुस्वार। हिंदी में भी क्या कहते हैं उसको? अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार। इसको अन्न, न का उच्चार होता है। अन्न क्या होता है? अन्न। चलिए बोलिए मेरे साथ अन्न अंगूठानो अन्न अन्न अंगूठानो अन्न अन्न अंकनो अन्न अन्न अंकनो अन्न। क्या कहेंगे इसे? अन्न अंगूठानो अन्न और अन्न अंकनो अन्न। ચાલો હવે કહો બાળકો આને શું કહેવાય? अह। आज बे डॉट छे जो दो बिंदु है उसे ह बोलते। क्या बोलते? ह। जिसे हम विसर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग। क्या कहा जाता है इसे? ह। जो दो बिंदु है उसका उच्चारण ह होता है। उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग भी कहते हैं। चलिए अब इसे हम देखते हैं चित्र के द्वारा। अह। अह का उच्चार क्या होगा? नमः। ये न के बाद जो दो डॉट है उसे नमः बोलते हैं। ह ये दो डॉट है उसका उच्चार क्या होगा? अह। अह नो नमः। है ना? कोई भी वर्ण जो होता है उसके पीछे हम दो डॉट लगाते हैं उसे हम ह कहते हैं। क्या कहते हैं? ह। तो जैसे नम लिखा है तो नम के बाद में जो दो डॉट है उसे हम ह कहेंगे। तो इसे हम बोलेंगे अह। क्या बोलेंगे? अह। ચાલો બાળકો હવે કહો આને શું કહેવાય? રૂ। શું કહેવાય? રૂ। गुजरातीમાં આને આપણે રૂ કહીએ અને हिंदीમાં री। हिंदी में क्या कहते हैं? री। इसमें इसको हिंदी में री की मात्रा कहते हैं और गुजराती में रू। कि कोई भी व्यंजन जो होते हैं उसके नीचे ऐसा आधा सी जैसा जो बनता है उसे हम री कहते हैं। क्या कहते हैं? री। गुजराती में रू। શું કહેવાય? रू। ચાલો હવે આપણે આને ચિત્ર દ્વારા શીખીએ તો બોલો रू ऋषि नो रू रू ऋषि नो रू रू ऋतु नो रू रू ऋतु नो रू। है ना समझ में? अब हमें इसे गुजराती हम ऋषि कहते हैं लेकिन हिंदी में ऋषि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऋषि। और ऋतु को ऋतु। ऋतु क्या बोला जाता है? ऋतु। चलिए फिर से बोलिए मेरे साथ रू ऋषि नो रू रू ऋषि नो रू रू ऋतु नो रू रू ऋतु नो रू। आया ना समझ में? मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा और समझिएगा तब आपको अच्छे से पहचान में आ जाएंगे कि सारे स्वर के बारे में, जिससे आप अच्छे से स्वर के बारे में सीख सकेंगे। सीखिएगा। ओके? सीखोगे ना अच्छे से? अच्छे से अ से रू तक जो भी स्वर के शब्द है उसे आप बार बार बोलिएगा। बोलोगे ना? तो चलिए अब मैं एक प्रश्न पूछती हूँ उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ए से कौन सा शब्द बनेगा? ओके?
वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ए से कौन सा शब्द बने, जैसे ए से एरण है तो वैसे गुजराती में दूसरा शब्द क्या होगा वो आपको लिखना है ए से। ओके, बाय बाय।